Good morning, dear students. My name is Sudhir Shukla, and I used to teach the subject electronic devices. Dear students, hope you are well, and I also wish that you will take care of yourself. Okay, so let's start our discussion. So, in my previous videos, we have just discussed about the transistor, about the transistors family, जिसमें हमने देखा विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट कि ट्रांजिस्टर को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. दैट ट्रांजिस्टर इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर मींस बाइपोलर डिवाइसेस एंड यूनिपोलर डिवाइसेस, BJT and FET. Further, BJT is of two types, NPN and PNP, and FET is further classified into two parts, that is JFET and FET. After it all, जो हमने देखा BJT में NPN and PNP, उसके रिगार्डिंग हमने देखा कि किस तरह हम उनका फॉर्मेशन करते हैं और NPN के लिए और PNP के लिए हम किस तरह के सिंबल्स यूज करते हैं. उस सिंबल्स के बिहाफ पे वी कैन टेल कि वेदर इट इज NPN ट्रांजिस्टर और वेदर इट इज PNP ट्रांजिस्टर. सो लेट्स मूव ऑन. तो ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा और हम जानते हैं एंड लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन दैट इज ट्रांजिस्टर एक्शन. Transistor action. Dear students, one thing I want to tell you, transistor is also an electronic device and diode is also electronic device. Differences कई हैं, पर जो मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं, जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज यूज की जा रही हैं, दैट इज सेम, दैट इज सेमीकंडक्टर. और P और N यही दो तरह के सेमीकंडक्टर्स हैं जिनका यूज करके उनके कॉम्बिनेशन से हम डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जब हम डायोड की बात करते हैं तो वी से कि देयर इज अ सिंगल जंक्शन, एक जंक्शन होता है. एंड व्हाइल टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिस्टर, दैट ट्रांजिस्टर इज हैविंग टू जंक्शंस. तो डायोड को जनरली वी से कि डायोड इज अ active device because during its construction the action starts, that is flow of current. लेकिन ट्रांजिस्टर को we say that transistor is a passive device, means during construction the action doesn't start. For that we have to do biasing. उसके लिए हमें biasing करनी है. So let's see what is transistor action. We all know there are two type of transistors, NPN and PNP. So NPN हम कंसिडर करते हैं and NPN transistors are mostly preferable, क्योंकि NPN की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो N है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और दोनों चार्ज कैरियर्स वेदर इट में बी इलेक्ट्रॉन और होल्स, जब हम मोबिलिटी की बात करते हैं तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हाई. That's why we prefer कि जहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, तो हम प्रिफर करते हैं NPN और PNP में NPN. तो लेट मी ड्रा फर्स्ट ऑफ ऑल NPN ट्रांजिस्टर. N, P and N having three terminals, we all know. And we also know, dear students, if it is a N type semiconductor, तो majority charge carriers are electrons, and if it is P type semiconductor, तो majority charge carriers are holes.
and respectively vice versa for the minority charge carriers. So this is what NPN means. If I write the terminals name, I can write E, B and C, emitter, base and collector. We all know that there is the depletion layer across this junction. जिसकी विड्थ इक्वल होती है. जैसे हमने N और P का कनेक्शन किया, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लीशन लेयर, और फिर P और N का फॉर्मेशन किया तो देयर इज आल्सो अ फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लीशन लेयर. एंड दीज आर द टू जंक्शंस. दिस इज व्हाट J1 and this is what, dear students, J2. We all know the majority charge carriers in this are electrons and minority charge carriers are holes. In this also the majority charge carriers are electrons and minority charge carriers are holes. And if we are talking about the p-type semiconductor, the majority charge carriers are holes while the electrons were minority charge carriers. So तीन टर्मिनल एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, दो जंक्शंस J1 and J2, majority and minority charge carriers along with the depletion layer is just shown here. तो मैंने आपको बताया कि द ट्रांजिस्टर इज अ पैसिव डिवाइस, मींस ट्रांजिस्टर एक्शन टेक प्लेस व्हेन वी डू अ बायसिंग फॉर दिस ट्रांजिस्टर. किसी भी डिवाइस का, एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगर उसका आपने एप्लीकेशन देखना, उसके ऑपरेशन को समझना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसके अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई करना होगा, बैटरी का कनेक्शन करना होगा, क्योंकि बैटरी के कनेक्ट होने के बाद ही, आफ्टर इट ऑल, वी विल जस्ट ऑब्जर्व दैट व्हाट इज हैपनिंग इन दैट डिवाइस, और फिर हम ऑब्जर्वेशन लेंगे. तो सेम thing I am going to do. I am just going to do a biasing. And I have told you about the biasing, that what biasing means. Bias means to fix. You have to just remember the word bias. That bias means fix. Just fix it. तो क्या फिक्स करना है हमें? If this is N, so either we can fix it with negative terminal of the battery or we can fix it with positive terminal of the battery. चाहे आप उसको N टाइप को या P टाइप को पॉजिटिव से फिक्स करिए या निगेटिव से फिक्स करिए. एंड इफ अगर N टाइप को आप निगेटिव से फिक्स करते हैं, मीन सेम पोलैरिटीज रखते हैं, देन इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग. एंड इफ आप निगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं, मींस डिफरेंट पोलैरिटीज आप कंसीडर करते हैं, दैट बायसिंग इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग. मींस द कंक्लूजन इज सिंपल, दैट इफ यू आर गोइंग टू डू अ बायसिंग, दैट मींस यू हैव टू फिक्स द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विद दैट ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सो हम यहां पे देखते हैं, मैं बायसिंग करता हूं and see what happens. What type of biasing I am going to do? Basically, I am going to connect. This is what emitter, this is what base, and this is what collector. मैं एमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करता हूं, एंड
बेस एंड कलेक्टर को रिवर्स्ड बायस में कनेक्ट करता हूं. दिस इज व्हाट N, दिस इज व्हाट P एंड दिस इज व्हाट N. सो अगर इसको मैं एमीटर और बेस को अगर मुझे फॉरवर्ड में कनेक्ट करना है तो N को मुझे निगेटिव से एंड P को मुझे पॉजिटिव से कनेक्ट करना होगा. मींस द कनेक्शन वुड बी लाइक इन दिस वे. This becomes the forward biasing. And collector और base को हम dear students reverse bias में connect करते हैं. तो for reverse biasing, this N is connected with positive terminal and this P is connected with negative terminal. Dear students, one thing you have to keep in mind for the transistor, that always emitter and base should be connected in forward bias and collector to be reversed bias. If you have to operate the transistor in a normal mode, if you have to operate the transistor in active mode, मैंने कल टेबल बनवाया था जहां मोड्स ऑफ ऑपरेशन की बारे में मैंने आपको बताया था. In that I have told you if the transistor have to work in a normal or active mode, the connection would be like emitter base को forward bias and collector should be in reverse bias. Emitter N is connected with negative, same polarity. P base is connected with positive, same polarity. That means first criteria is being fulfilled. Let's observe the second one. Collector should be in reverse bias. And what is here? N type. That is unconnected with positive. That means the criteria is fulfilled. Collector is in reverse bias. See what happens. जब हम फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करते हैं, जब इस ट्रांजिस्टर की NPN ट्रांजिस्टर की हम बायसिंग करते हैं, व्हाट वी ऑब्जर्व डियर स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन जो होता है दैट डिक्रीजेस. वी ऑल नो, क्योंकि देयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज अ पोटेंशियल बैरियर एंड आफ्टर अप्लाइंग द बैटरी, आफ्टर अप्लाइंग द वोल्टेज across the junction J1, that potential barrier is removed and the majority charge carriers are allowed to move on. और उसकी वजह से जो डिप्लीशन विथ होती है that goes decreases. And see what happens here, that depletion region becomes so narrow, that depletion region becomes so narrow. This happens in the case of forward biasing. But what happens dear students, जब हम रिवर्स बायस का केस लेते हैं उस दौरान what we observe कि रिवर्स बायस के केस में as the voltage increases, the depletion width also increases. Depletion width भी बढ़ती है. And what we observe कि depletion width is formed in this way. That depletion width, dear students, increases. Forward bias के केस में depletion width decreases and becomes so narrow, so thin. That's why we say in the forward bias, PN junction works as a conductor because resistance decreases. And in the reverse bias case, that depletion width increases. We say resistance increases. So this will be the new width of the depletion region. तो जब आप ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट केस और सेकेंड केस को, तो क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है, दैट इज द रेजिस्टेंस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस जंक्शन टू दिस जंक्शन.
J1 से रेजिस्टेंस ट्रांसफर हो गया J2 में, मीन्स J1 से ट्रांसफर हुआ रेजिस्टेंस J2 में. लेट्स सपोज कि द रेजिस्टेंस वाज 10 and 10, क्योंकि prior to the biasing the resistance, the depletion width was equal with थी. While this biasing, what happens कि this resistance becomes 2 ohm, 10 से वो वैल्यू 2 हो जाती है, and this 10 changes to 18, means prior it was, value was priorly 10 and 10, and after biasing what we observe, this 10 becomes 2 and this 10 becomes 18. So here what we are observing कि resistance is transferred from this junction to this junction. So we say कि there is the transfer of resistor. There is what? Transfer of resistor. And simply we can say कि this is nothing but the, if we eliminate this term, we have a new term, that is what? Transistor. और यहां से शब्द आता है ट्रांजिस्टर. Prior to the biasing, resistance was equal at both of the junctions J1 and J2. And when I have connected this NPN transistor with a battery, the connection of the battery is such in this way कि emitter and base is put in the forward bias and collector and base is put in the reverse bias. Due to which what we have observed कि forward bias में resistance decreases and in the reverse bias case this resistance increases. And we have observed कि it seems like the resistance is transferred from this junction to this junction. And this, what I have written here, transfer of resistor takes place. And this is nothing but the transistor. And this action is called transistor action. और इसी को हम बोलते हैं transistor action. I hope you come to understand कि what do you mean by transistor action. Dear students, you are observing कि फॉरवर्ड बायस के केस में मैंने जो सेल लिया डेट इज सिंगल, और यहां पे मैंने दो सेल्स यूज किए हैं. बैटरी यहां की लार्ज है और बैटरी यहां पे लो है. बैटरी की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू इसके अक्रॉस कम है और इसके अक्रॉस ज्यादा है. द रीजन इज फॉरवर्ड बायस में द रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, सो वी हैव टू यूज अ स्मॉल बैटरी. But in the reverse bias case, dear students, the resistance is quite high. For that, we have to use the number of cells. बैटरी की वैल्यू हमें लार्ज रखनी होगी. Let us take or understand the flow of the current in this transistor. Dear students, you will observe the majority charge in this are electrons, and the minority are holes. Similarly, majority are electrons and minority are holes. तो हम देखते हैं इन द फॉरवर्ड बायस केस, यहां से पॉजिटिव चार्जेस, एंड दिस इज अ पी टाइप इन विच द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वर इलेक्ट्रॉन्स. हमें पता है कि इन द फॉरवर्ड बायस केस यहां से पॉजिटिव चार्ज जाएंगे. दिस पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल दिस पॉजिटिव चार्ज which are as a majority charge carriers in the p region, and this repulsion will cause the migration of these majority charge carriers in this region. क्योंकि यहां पे electrons है, these electrons will jump and recombine with the these holes, and there will the deficiency of holes, और holes की यहां कमी होगी. That will be basically fulfilled by this way, and we say
कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे जाता है एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल पुल दिस इलेक्ट्रॉन, this electron will pull this electron and this electron will pull this electron and this electron will recombine with this hole, and similarly a hole is provided from this terminal and the current is flow in this direction. करंट हमें इस डायरेक्शन में फ्लो करते हुए पॉजिटिव टू नेगेटिव मिलती है, एंड दैट इज व्हाट फॉरवर्ड करंट. डियर स्टूडेंट्स, if you observe the case of collector and base junction, इस केस में जब इलेक्ट्रॉन यहां से इस रीजन में माइग्रेट करते हैं डिप्लीशन रीजन के फॉर्मेशन के दौरान, तो यहां पे जो पोटेंशियल आता है दैट इज पॉजिटिव एंड हियर इट इज नेगेटिव. दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, and this electric field from positive to negative, it allows these electrons which are minority in this p type to move from p to n region, and it doesn't allow these majority charge carriers as electron to move from this region to this region. वो allow नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस केस में जो कैरियर्स मूव कर पाते हैं those are minority charge carriers. फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, एंड इट अलाउज पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को अपने डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स को इस डायरेक्शन में. दैट्स व्हाई वी से द करंट व्हिच फ्लोज इन दिस केस इट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट. तो हमने देखा कि फॉरवर्ड बायस में किस तरह से करंट मिलती है एंड रिवर्स बायस के केस में किस तरह से करंट हमें मिलती है. डियर स्टूडेंट्स, ट्रांजिस्टर में हमारे दो जंक्शंस एंड टर्मिनल्स की हम बात करें तो देयर आर 3 टर्मिनल्स. तो आप पीएन जंक्शन को एक बार रिमाइंड करोगे और रिमेंबर दैट डायोड कि एक जंक्शन के लिए हमने 2 टर्मिनल यूज किए थे बैटरी के. तो यहां पे अगर 2 जंक्शंस हैं तो फॉर दैट देयर विल बी 4 टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. 4 टर्मिनल होना चाहिए. जैसे जब डायोड की हमने बात किया था डियर स्टूडेंट्स, तो एक जंक्शन 2 टर्मिनल, और यहां पे 2 जंक्शन तो देयर शुड बी 4 टर्मिनल्स. एक जंक्शन 2 टर्मिनल, 2 जंक्शन 4 टर्मिनल, बट हियर वी हैव ओनली 3 टर्मिनल्स. हमारे पास 3 टर्मिनल्स होते हैं. द सेकेंड थिंग, एक जंक्शन एक बैटरी, 2 जंक्शन 2 बैटरी. तो 2 बैटरी के करस्पॉन्डिंग देयर आर 4 टर्मिनल्स, 4 टर्मिनल्स होंगे, बट हियर वी हैव ओनली 3 टर्मिनल्स. तो कंक्लूजन इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि हमें बैटरी के टर्मिनल्स 4 अवेलेबल हैं और डिवाइस के टर्मिनल सिर्फ 3 हैं. तो हमें किसी एक टर्मिनल को कॉमन करना होगा. एंड व्हाइल मेकिंग एनी ऑफ द टर्मिनल कॉमन, whether it may be emitter, whether it may be base, whether it may be collector, इनसे हम 3 अलग तरीके के कॉन्फ़िगरेशंस बनाते हैं. हाउ? सी, if we are going to make a common this base terminal, that configuration is called common base. और अगर हम emitter को कॉमन करते हैं तो we say कि common emitter configuration, और अगर हम collector को कॉमन करते हैं तो we say कि common collector configuration. So dear students, I hope you come to understand what I want to tell you. Let me write, after it all you will be more clear. If there is one junction, so there is one battery. If there is 2 junction, there is 2 battery. And each of the battery is having 2 terminals. लेकिन जब हम 2 जंक्शंस की बात करते हैं, which is nothing but the NPN ट्रांजिस्टर, एमीटर, बेस, कलेक्टर, जहां हमारे पास 3 ही टर्मिनल होते हैं और बैटरी के टर्मिनल्स हैं 4, तो हमें इन टर्मिनल्स में किसी एक को कॉमन करना पड़ता है.
for the proper connection, for the proper biasing. It depends कि forward bias हम कर रहे हैं, reverse bias कर रहे हैं, that is another thing. But here हमें एक टर्मिनल को कॉमन करना पड़ेगा क्योंकि हमें बैटरी 2 यूज करनी है और उसके करस्पॉन्डिंग टर्मिनल्स 4 हैं. तो जब हम बेस को कॉमन करते हैं, इसी के आधार पे, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं ट्रांजिस्टर के. It may be either common base configuration, it may be either common collector configuration, it may be either common emitter configuration. So let's see, let's have a look for the configuration of transistor. I hope you understand well that what is the transistor action. So let me draw the configuration for transistors. So we come to know, dear students, that there are 3 configurations. One is common base, another is common emitter and common collector. So let me draw first of all common base. Let me draw first of all, after it all, I will explain you how I have drawn this. If I have marked an arrow, that means this is what I have to ground this. This is base, this is emitter, and this is collector. This is what RB, this is what RC, minus and plus, plus and minus. The second one is common emitter configuration. Dear students, जिस टर्मिनल को हमने कॉमन करना होता है उस टर्मिनल को हम नीचे की साइड रखते हैं. दिस इज नॉट द रूल, बट फॉर कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू, कन्वीनियंस के लिए जनरली वी डू. And if we say the last one is common collector, this is drawn in this way. It will be better for you to draw along with me, so you will also practice. Minus and plus. Dear students, मैंने आपको बताया कि we have to make one terminal common. So based on that concept, there are 3 type of configurations: common base, common emitter and common collector. और एक बात और मैंने बताई कि जिस टर्मिनल को हमने कॉमन करना है उसको हम नीचे के साइड रखते हैं. सी, कॉमन बेस, बेस नीचे की साइड है. कॉमन एमीटर, एमीटर नीचे की साइड है. कॉमन कलेक्टर, कलेक्टर
नीचे के साइड है। दिस इज फॉर द कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा रूल नहीं है। इन मैनी ऑफ द बुक्स यू विल फाइंड कि सर्किट थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है उसका शेप, बट डजेंट मैटर। जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके से आप पढ़ोगे, समझोगे, बनाओगे तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो लेट्स सी फर्स्ट कॉमन बेस। मैंने अभी आपको बताया था कि इफ वी हैव टू ऑपरेट द एनपीएन ट्रांजिस्टर, द ट्रांजिस्टर दैट मीन्स बीजेटी इन अ नॉर्मल इलेक्टिव मोड, फॉर दैट हमें दो चीजों का ध्यान रखना। पहला, एमीटर और बेस को हमने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना है और कलेक्टर को हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है। तो वी विल ऑब्जर्व फॉर ऑल दिस थ्री केसेस कि वेदर आई हैव ड्रॉन करेक्टली और नॉट। लेट अस चेक एमीटर एंड बेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिसाइड करना है कि वेदर दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। और कल मैंने चेक करने का तरीका बताया था आपको। करंट की डायरेक्शन जिस टर्मिनल पे है दैट इज एमीटर, ये तो क्लियर है। करंट जो फ्लो करती है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट मींस दिस टर्मिनल इज पी, दिस टर्मिनल इज एन एंड द नेक्स्ट which remains that is also n. तो ये ट्रांजिस्टर आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। सिमिलरली वी चेक फॉर दिस केस आल्सो, एरो इस पे मार्क्ड है दैट मींस दिस इज अ एमीटर, दैट्स ओके। टी जो शेप बनता है दैट टी शेप इज बेस, क्योंकि बेस आधार होता है। तो डायरेक्शन विल बी फ्रॉम पी टू एन and here we can also put n, so this is also a npn transistor. Let us check for the third case. Here this is a p, this terminal is n and this is also n, this is also a npn transistor. मतलब ये तो clear है कि all of these three are npn transistor, that's okay. Now see, first case में अगर ये n है, एमीटर और बेस को हमें फॉरवर्ड रखना है और कलेक्टर को हमें रिवर्स रखना है। n is connected with negative and p is connected with positive, that means this circuit which will be treated onwards as an input circuit is in forward bias, and collector and it is connected with positive opposite polarity, that means this, if we treat this to be output circuit तो ये reverse bias में है। and once emitter and base is in forward bias and collector in reverse bias, this transistor will work in the active or normal mode. First case is okay, common base. Second, common emitter. Emitter and base, base positive, that is connected with positive terminal of the battery. Emitter and negative, this is connected with negative terminal of the battery. That is clear in itself. This circuit, this emitter base junction is in forward bias. Let us check for this one. Collector N and it is connected with positive. N is connected with positive, that means collector is connected with opposite polarity. That what it means? It means the collector is connected in the reverse biasing. This circuitry is also okay. Let us check for the third one. Positive and emitter. This collector. Collector, this is N and this N is connected with this positive. N is connected with this P. That means collector is in reverse bias. But see the case of base and emitter. Base positive, this is connected with positive, and this is emitter N, it is connected with negative. That means this N is with same polarity, this P is with same polarity. That means in this circuit, common collector also, the emitter and base are connected in forward bias, and the collector is connected with the reverse bias. That means all of these three circuits hold that property कि emitter और base forward bias में and collector is in reverse bias. So these are the three configurations related to the transistor. Dear students, इन तीनों के अपने अलग अलग एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं और इनके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं तीनों के, whether it may be common base, whether it may be common emitter, whether it may be common collector, तीनों के अपने अपने अलग एप्लीकेशंस हैं. So according to the
सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमें कॉमन एमीटर सर्किट को यूज करना है, बिकॉज दैट कॉमन एमीटर सर्किट इज यूज्ड एज ए ट्रांजिस्टर। जब अगर हमें ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह एक्सप्लेन करना हो, तो फॉर दैट वी प्रीफर दिस कॉमन एमीटर सर्किट। कॉमन एमीटर सर्किट को ही हम कंसिडर करके एम्पलीफायर सर्किट की डिजाइनिंग करते हैं। करस्पॉन्डिंगली हमारा वोल्टेज गेन, करंट गेन सब हाई रहता है, पावर गेन दैट इज ऑल्सो हाई। दैट्स वाई दिस सर्किट इज मोस्ट प्रिफरेबल फॉर ट्रीटिंग ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। So these are the three configurations. I hope you come to understand the configuration for the transistor. Now we will come to know the transistor characteristics. For that I will take this common emitter configuration. अब हम देखेंगे ट्रांजिस्टर की VI कैरेक्टरिस्टिक। I have told you dear students कि ट्रांजिस्टर को हम ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर क्यों कहते हैं, एंड ट्रांजिस्टर का अगर हम बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डियर स्टूडेंट्स ट्रांजिस्टर यूज करते हैं हम एज अ स्विच, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मैं बात करूं तो हम यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर। सो लेट अस टेक डियर स्टूडेंट्स, we will understand the characteristic of the transistor. The VI characteristics of the transistor. For that I have to take the circuit, that is common emitter circuit. So let me draw first of all the common emitter circuit. We all know this will be the emitter and this will be the collector, and this will be the base. This is what? Base. This is what? Collector. And this is what, dear students? Emitter. So here is the resistance, and here I have connected emitter. Here again I am connecting an emitter. Here is the output resistance. This is what, dear students, basically यहां पे आप देख पा रहे हैं कि एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, जहां पे बेस के साथ एक रेजिस्टेंस है उसको हम नाम देते हैं RB, और एक मैंने एमीटर यूज किया है इन दिस सर्किट। दैट एमीटर इज बेसिकली डियर स्टूडेंट्स टू नो द फ्लो ऑफ करंट, करंट कितनी फ्लो कर रही है इस सर्किट में, उसके लिए हमने एमीटर का कनेक्शन यहां पे किया है। सिमिलरली मैंने एक एमीटर इस कलेक्टर के साथ भी कनेक्ट किया है। I suppose this voltage to be VBB, and मैं इसका नोमेनक्लेचर करता हूं
VCC, क्योंकि कलेक्टर के साइड है तो इसको हम रख देते हैं दीज आर द बेस बैटरीज, दीज आर द बेस बैटरीज VCC एंड VBB, और इनको हम वेरिएबल रखते हैं। द रीजन आई विल टेल यू, इनको वेरिएबल रखते हैं हम कि हम इनको वेरी करा सके। कारण soon I will let you know. This is what base and this is what ammeter, और इनके बीच में एक हम वोल्टमीटर लगाते हैं whose voltage is VBE, एंड इसके क्रॉस सिमिलरली हम एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, डेट इज व्हाट VCE. See, this is what the collector, this is what the ammeter. So the potential difference across it is VCE. This is what base, this is what ammeter. So potential difference across this is denoted by VBE. Now see, we have to observe the VI characteristic for this transistor. हमारे पास दो जंक्शंस J1 एंड J2, तीन टर्मिनल्स एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। सिमिलरली हम कैरेक्टरिस्टिक भी जो यहां पे देखते हैं डेट इज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि बेस्ड ऑन दीज थिंग्स हम जो कनेक्शन करते हैं, बाइसिंग जो करते हैं, वो दो तरीके से करते हैं। एक जंक्शंस की फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं और एक जंक्शंस की रिवर्स बाइसिंग करते हैं। So for the forward biasing, हम जो कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग, व्हाट वी ऑब्जर्व द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज नथिंग बट द BE कैरेक्टरिस्टिक, BE which is called forward characteristic. Dear students, that is called forward characteristic. And that is, and dear students, and that is in between the input current which is considered here is IB. Input current is considered here, whose direction will be in this direction. This will be IB. और कलेक्टर की जो डायरेक्शन होगी डेट इज IC, पॉजिटिव टू निगेटिव, और एमीटर की डायरेक्शन दिस वन, दिस इज व्हाट IE. तो इन दिस सर्किट व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग कि बेस अगर ये जंक्शन है, क्रॉसिंग है, कलेक्टर बेस और एमीटर बेस का ये जंक्शन है, तो इस पे हम देखते हैं कि बेस करंट इस ट्रांजिस्टर में आ रही है, कलेक्टर करंट इस ट्रांजिस्टर में आ रही है, और इस ट्रांजिस्टर से निकल कौन सी करंट रही है IE. तो अगर हम किरचॉफ करंट लॉ लगाएं, KCL लगाएं, तो वी विल फाइंड कि IE इज इक्वल्स टू, डियर स्टूडेंट्स, IB प्लस IC. You will observe IE, what KCL says, total incoming current is equals to total outgoing current. So in this transistor, if you observe, the outgoing current is IE, emitter current, and incoming currents are collector and base current. So total outgoing current is what IE, or incoming current are IB and IC. So we can write this equation I is equals to IB plus IC. और मैंने आपको बताया था कि NPN ट्रांजिस्टर में एमीटर का काम होता है चार्ज, मेजॉरिटी चार्ज केजेस को एमिट करना, एंड ऑल द करंट इज ड्यू टू द, इन द ट्रांजिस्टर इज ड्यू टू द एमीटर, उसके सप्लाई की वजह से। इस वजह से हम कहते हैं कि वेदर इट मे बी एनी टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वेदर इट इज कॉमन एमीटर, वेदर इट इज कॉमन बेस, वेदर इट इज कॉमन कलेक्टर, जो इक्वेशन होगा डेट विल बी I is equals to IB plus IC. So dear students, ये इक्वेशन हरदम सेटिस्फाई होना चाहिए. दिस यू हैव टू kept in your mind.
तो जो हमें ग्राफ बनाना है डेट इज, अगर उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, और इफ वी से कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो डेट विल बी इन बिटवीन IB एंड VBE. These are the base batteries. मैंने रीजन बताया कि क्यों हम बैटरी हाई रखते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस रिवर्स बायस केस में हाई होता है एंड कलेक्टर इज इन रिवर्स बायस. और बैटरी हम क्यों स्मॉल रखते हैं, द रीजन इज कि यहां पे रेजिस्टेंस स्मॉल होता है. बट दीज आर द बेस बैटरीज. तो अगर हम IB का वेरिएशन देखेंगे तो वी विल ऑब्जर्व दैट वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस VBE, इस वोल्टेज की वजह से. सो वी ऑल नो डियर स्टूडेंट्स, एमीटर एंड बेस इज इन फॉरवर्ड बायस. एमीटर बेस हमारा फॉरवर्ड बायस में है. लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ NPN ट्रांजिस्टर. This is what NPN. This is in forward bias and this is in reversed bias. So this is what emitter, this is what base and this is collector. तो फॉरवर्ड बायस में हम देखेंगे कि जो करंट मिलेगी इन दिस डायरेक्शन, इट इज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड दैट करंट विल बी इन दिस वे. वो करंट मिलेगी इस तरीके से, क्योंकि PN जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस एंड करंट इज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. बट व्हाट वी ऑब्जर्व कि जब करंट यहां से होल्स जा रहे होंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, इधर से पॉजिटिव चार्जेस एंड इधर से निगेटिव चार्जेस, इधर से पॉजिटिव चार्जेस इधर से निगेटिव चार्जेस आ रहे होंगे, उस दौरान इस करंट को कहीं ना कहीं ये करंट इफेक्ट कर रही होगी, क्योंकि जो इस वोल्टेज की वजह से करंट है दैट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. एंड डियर स्टूडेंट्स, N के लिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज व्हाट, पॉजिटिव चार्जेस, होल्स, और वो होल्स इस P के लिए क्या बनते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. तो वी विल ऑब्जर्व कि अगर हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट मिलनी चाहिए तो दैट इलेक्ट्रॉन्स विल बी एब्सॉर्ब बाय दिस टर्मिनल. ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस पॉजिटिव चार्जेस विल अट्रैक्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर करंट, क्योंकि वी ऑल नो I इक्वल्स टू NeAVD, जितने नंबर ऑफ N उतनी ही वैल्यू करंट की हमें मिलेगी. तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें करंट मिलनी चाहिए तो वहां हमें 10 की वजह से वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहां से जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा. तो यहां से 3 4 मींस एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में आ जाते हैं, और करंट जो हमें मिलती है फाइनल, दैट इज ड्यू टू द 5 इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन्स इस वाले रीजन में आ जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे माइनॉरिटी हो जाते हैं और ये करंट ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करती है. तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं दिस करंट, व्हाट इज दैट, IB, दिस करंट इज अफेक्टेड बाय दिस वोल्टेज. इस आउटपुट की वोल्टेज की वजह से कहीं ना कहीं ये करंट इफेक्टेड हो रही है. सो व्हाट वी डू, वी मेक दिस VC कांस्टेंट. हम इस VC को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं. तो वी से कि VC इज कांस्टेंट, वी केप्ट इट सम कांस्टेंट. जब हम डियर स्टूडेंट्स टेबल ड्रॉ करते हैं तो वी ऑब्जर्व if this is VBE and this is IB, so 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, no current, no current, no current. At this, in milliamperes we found current 1 milliampere, 2 milliampere, 6 milliampere, in this way. लेकिन जैसे ही VBE वोल्टेज चेंज होता है 0.6 to 0.8, this and we are putting this VC to be constant K. What we observe,
कि जैसे 0.6 से 0.8 वैल्यू वीबी की चेंज होती है, दिस वीसी ऑल्सो चेंजेस। तो हमें उसको वापस रेगुलेट करना होता है, दिस वीसी ऑल्सो चेंजेस। तो हम फिर वीसीसी से उसको रेगुलेट करते हैं और उसको कांस्टेंट करते हैं, क्योंकि अगर इनमें वेरिएशन होने लगा सो में डैट उसकी वजह से दिस करंट विल बी अफेक्टेड। तो प्रॉपर हमें बिहेवियर नहीं पता लग पाएगा। फॉर दैट व्हाट वी डू कि हम इसकी वजह से इसको क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। तो हम इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं एंड वी अज्यूम दिस टू बी समथिंग 5 वोल्ट। एंड अगेन हम आईबी वीबी की कुछ और वैल्यू लेते हैं या वीसी की किसी और एक वैल्यू पे ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें ग्राफ किसी और तरीके का मिलता है। दिस इज फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ VCE। VCE के डिफरेंट वैल्यूज पे हमें डिफरेंट IB की वैल्यू मिलती है। द रीजन इज shown here. So this is what input characteristic or forward characteristic or B characteristic for the common emitter configuration. Second हम देखते हैं dear students output characteristic. Output characteristic that is basically drawn because output current is reverse saturation current. तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा जहां वोल्टेज भी निगेटिव एंड करंट इज आल्सो निगेटिव। तो लेट मी ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल द टेबल दैट graph is in between VCE and IC. Again what we see कि जैसे जैसे हम VCE को इंक्रीज करते हैं this IC increases, लेकिन जो IC हमें मिल रही है, जो कलेक्टर करंट हमें मिल रही है, that is due to the minority charge carriers. So we observe the graph of it in this way. रिवर्स सैचुरेशन करंट का किस तरह वेरिएशन होता है, दिस इज व्हाट VCE, दिस इज व्हाट IC इन माइक्रो एम्पियर्स। वी ऑब्जर्व कि करंट का वेरिएशन कुछ इस प्रकार से होता है, बट यू हैव टू अगेन केप्ट वन थिंग इन योर माइंड कि जब VCE को वेरी कर रहे थे जिसकी वजह से IC का वेरिएशन था, इस IC को इफेक्ट करती है दिस IB, जो बेस करंट है, दैट आल्सो इफेक्ट दिस IC, दिस बेस करंट आल्सो इफेक्ट दिस IC, क्योंकि बेस करंट में जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ कलेक्टर के होल्स विल बी अलाउड। दिस बेस ट्रीटेड एज ए गेट की तरह ट्रीट होता है। 100 नंबर ऑफ होल्स यहां अवेलेबल है, क्योंकि n के लिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स और वही अलाउड होंगे फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो अगर बेस पे दो ऐसी गेट है जो कि सिर्फ एट ए टाइम 2 होल्स को अलाउ करेगी, तो यहां पे कितने भी नंबर ऑफ होल्स हो एट ए टाइम 2 ही होल्स पास हो पाएंगे, और जो करंट होगी दैट विल बी ओनली ड्यू टू द 2 नंबर ऑफ होल्स। लेकिन अगर इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज the number of holes here, if I am going to increase the number of holes from 2 to 10, तो अब at a time वो 10 number of holes को allow करेगी, means it is the base current, it is the base which is treated as a gate that is controlling this IC। तो कहीं ना कहीं इस IC को ये base current इफेक्ट कर रही है। For that we have to make that base current constant, और हमें IB को constant करना होगा। तो जब हम IB 2 होल रखते हैं तो 2 होल्स को अलाउ करेगी, 4 होल्स रखते हैं तो 4 होल्स को अलाउ करेगी, 10 होल्स रखते हैं तो 10 होल्स को अलाउ करेगी। दैट मीन्स
कि IB की जितनी संख्याएं हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपकी IC मिलेगी. तो इफ I am putting IB to be a constant value, let's suppose here 1, 2, 10, 20, correspondingly we have the values of current in microamperes. तो हमें करंट मिलेगी इन माइक्रो एम्पियर्स. तो अगर हम IB की कोई कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं K1, IB टू बी K1, तो हमें कुछ ये करंट मिलेगी. और अगर हम IB की कोई दूसरी कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं तो वी विल गेट IB इज इक्वल्स टू K2, ये ग्राफ मिलेगा. फिर और कोई वैल्यू रखते हैं तो वी हैव ग्राफ IB इज इक्वल्स टू K3. Means this is what? This is basically IC. IC1, IC2, IC3 at different values of IB. तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो IC करंट होती है, कलेक्टर करंट, that depends upon this IB. इस करंट पे वो डिपेंड करती है. मीन्स कलेक्टर करंट जो कि आउटपुट करंट अगर हम कहते हैं, that output current depends upon the बेस करंट पे वो डिपेंड करती है. एंड द ग्राफ इज लाइक दिस वे. तो अगर हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में देखें डियर स्टूडेंट्स, और अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना हो तो सिंपली वी कैन ड्रॉ ट्राइंगल एंड वी विल गेट हियर DI एंड DV. सो वी कैन रिप्रेजेंट RBE रेजिस्टेंस एज ए V by I, that is DV upon DI. And dear students, this is what called static resistance. Static resistance. Similarly, here we can also draw the triangle and get the resistance. This is what DI, this is what DV. So we can write RCE is equals to DV upon DI. And this is, sorry, this is not a static, this is a dynamic resistance. I apologize for my words, I'm sorry. This is dynamic resistance. This is also a dynamic resistance. लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पे करंट माइक्रो एम्पियर्स में है, तो the resistance value goes from 1000 to 100 of thousands kilo ohm. लेकिन यहाँ पे मिली एम्पियर में होती है करंट, तो जनरली थाउजेंड्स में, हंड्रेड से थाउजेंड्स में वैल्यू जाती है. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द BJT. लेट मी रिवाइज वंस अगेन. हमने NPN ट्रांजिस्टर देखा, फॉरवर्ड बायस एमीटर और बेस टर्मिनल, रिवर्स में कलेक्टर टर्मिनल. हमने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को यूज किया टू अंडरस्टैंड द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिस्टर. This side is treated as an input circuit. This is treated to be output circuit. Means input को हम करते हैं फॉरवर्ड बायस में, आउटपुट का करते हैं रिवर्स बायस में. अगर ऐसा कनेक्शन हम करते हैं तो हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करता है एक्टिव मोड में, और जिसको हम यूज कर सकते हैं एज ए एम्पलीफायर की तरह. तो यहां पे हम बैटरी इनके अकॉर्डिंगली जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको VB लेते हैं, इसके अक्रॉस हम VC लेते हैं. आउटपुट करंट IC होता है और इनपुट करंट IB होता है. और हम जब वेरिएशन देखते हैं एज ए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक IB और VBE का, तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं अगर VBE को हम वेरी कर रहे हैं जिसकी वजह से IB में वेरिएशन हो रहा है, तो वो वेरिएशन कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रहा है इस VCE वोल्टेज की वजह से. तो हमें VCE को कांस्टेंट करना होता है. एंड फॉर दैट हम VCE के डिफरेंट वैल्यूज पे IB के डिफरेंट ग्राफ्स ऑब्जर्व करते हैं. Dear students, similarly in the output characteristic what happens कि हम यहाँ पे वेरिएशन देखते हैं VC के साथ IC का, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं IB जो करंट है वो इफेक्ट कर रही है उस आउटपुट करंट को. तो वो इफेक्ट ना करे, फॉर दैट वी पुट दिस IB टू अ कांस्टेंट वैल्यू, और हमें ये मिलता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. सो वी कम टू नो द characteristic, input characteristic and output characteristic for the transistor, and this seems in this way.
So dear students, this is all for today. If you have any doubt regarding any of the topic or the terms or the graph or the circuitry, any of the thing, if you have a doubt, you can ask directly to me. So thank you so much for today. I hope you will take care of yourselves. Thank you students. Thank you so much.